हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? आप सब ठीक हो? आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद the sixth chapter of psychology, class 12, and the name of the chapter, as you can see on the screen, is Attitude and Social Cognition. All right, so this is NCERT which is open here, और ताकि हम word by word इसे अच्छे से read कर लें, और जहां जहां आपको अंडरलाइन करने की जरूरत होगी there I will highlight so that you can see and you can underline. All right, चले करें start. Okay. This chapter is going to cover these contents: introduction, then you have explaining social behavior, nature and components of attitudes, where there we will study about ABC component, then attitude formation and change, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, prejudice and discrimination, strategies for handling prejudice, social cognition, schemas and stereotype, impression formation and explaining, behavior of others through attribution, behavior in the presence of others, and pro-social behavior. So we are going to begin with the introduction first. I am going to start with explaining social behavior. Okay, social behavior is a necessary part of what is social behavior. First, socially, हम generally कहते हैं man is a social animal. So when I say man is a social animal means we are involved in many social activities. We are neighbors also, we are friends also, we are peers also, we are colleagues also. So हमारा socially यानी society में हमारा behavior कैसा होना चाहिए is what is they are talking about social behavior. करें आगे? It's a necessary part of human life. And being social means, underline कर लो इसको, much more than merely being in the company of others. मतलब अगर कोई किसी की कंपनी में है और वो कहता है कि वो सोशल है, इतना ही नहीं, इतना काफी नहीं, तो बीइंग सोशल डज नॉट मीन कि आई एम सिटिंग इन द कंपनी ऑफ अदर्स, सो आई एम गिविंग कंपनी टू माई नेबर और टू माई पियर, सो आई से आई एम अ सोशल बीइंग. सो आई कैन नॉट से दैट. You may recall from what you studied in class 11 that social psychology, आपने class 11 में पढ़ा था ना, social psychology deals with all behavior that takes place in actual, ये अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, actual, imagined, actually आपका behavior, imagined और implied presence of other. और हम जनरली कहते हैं कि हमारा बिहेवियर ना दूसरों के सामने, यानी we always, जैसे हमने पर्सनालिटी में पढ़ा कि हम persona कैरी करते हैं, so we are different in front of others and we are different when we are in our own self. So इट इज दी सोशल साइकोलॉजी. जब हम स्टडी करते हैं इट मीन्स मैं एक्चुअली कैसी हूं, दूसरा मैं किसी की प्रेजेंस में कैसे बिहेव करती हूं. टेक दिस सिंपल एग्जाम्पल. इफ यू हैव टू मेमोराइज अ पोम और अ पोएम जिसे हम बोलते हैं एंड रिसाइट इट, यू मे हैव नो प्रॉब्लम इन डूइंग दिस व्हेन यू आर बाय योरसेल्फ. बट इफ यू हैव टू रिसाइट दिस पोएम टू एन ऑडियंस, your performance might get influenced because you're now in social situation. घर में आप अपना आराम से बैठे हैं अपने घर की सेटिंग में और एक पोएम पढ़ना चाहते हैं या कुछ और रीड करना चाहते हैं, यू आर डिफरेंट. व्हेन यू आर एड्रेसिंग द गैदरिंग, यू आर डिफरेंट. इवन इमेजिनिंग दैट पीपल आर लिसनिंग टू योर रेसिटेशन, ऑल्दो दे मे नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट, मे चेंज योर परफॉर्मेंस. जब हम, एक तो होता है रूटीन में घर में कोई आया, उनको बोला हमने देखिए मैंने ये पोएम लिखी आप सुनिए, तो ये जनरल हो गया. एक होता है मुझे एड्रेस करना है गैदरिंग को, डिफरेंट. एक होता है मुझे गैदरिंग को एड्रेस करने के लिए प्रिपेयर करना है, दैट्स ऑल्सो गिव्स यू नर्वसनेस, सो दैट इज डिफरेंट. सो इट इज रिटन परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी डिफरेंट. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल दैट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ आवर सोशल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स. हम जैसे ही सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं हमारे थॉट्स चेंज हो रहे हैं. कैन यू सी दिस हियर? ओके, where did I lose that? May change your performance. This is just one example that demonstrates thoughts, emotions. तो social environment किन किन चीजों से influence होता है, underline कर लीजिए. Thoughts से, emotions से, behavior in complex ways. Normal situation में आप क्या करते हैं, that is different. But complex, हमारी असली पहचान जब हम trouble में होते हैं तब होती है ना. जब हम नॉर्मल हैं तब तो हम नॉर्मल ही हैं, लेकिन अगर मुझे एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डाल दिया जाए तो पता चलता है कि हमारी एक्चुअली पर्सनालिटी क्या है और हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होगा. और मेरे इमोशंस भी डिफाइन करते हैं मेरे थॉट्स. तो ये 3 वर्ड्स आप याद रखिए, एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है.
Social psychologists examine various forms of social behavior. Try to explain their basis. Because of social influences, people form views. क्योंकि हम socially influenced हैं, तो लोग हमारे बारे में views बनाते हैं, attitudes about people हम develop करते हैं, and about different issues of life. Okay, so that exists in the form of behavioral tendencies. When we meet people, we make inferences about their personal qualities. हम जैसे किसी से मिलते हैं ना, हम उसके बारे में कुछ ना कुछ बना लेते हैं माइंड में इमेज. ये बहुत एरोगेंट लगता है, ये बहुत स्वीट लग रहा है, अपने आप ही बना लेते हैं उनकी पर्सनैलिटी को देखकर, उनके अटायर को देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर. सो वी मेक द इंप्रेशन दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरल टेंडेंसी. कैसे पता चलता है? उनके बिहेवियर्स को देखकर. When we meet people, we make inferences about their personal qualities. इसे क्या बोलते हैं? Impression formation. तो ये क्वेश्चन हो गया 1 मार्क के लिए. What is impression formation? Impression formation is when we meet people, we make inferences about them, about their personal qualities. We are also interested in why people behave in the way they do. That is, we assign causes to the behavior. अब क्या करते हैं हम? इससे भी ज्यादा, अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर बिहेवियर कहीं किया तो हम अपनी तरफ से, बिना जाने अपनी तरफ से उसको कारण देने शुरू कर देते हैं कि भाई इस वजह से किया होगा, पक्का उसकी ये प्रॉब्लम होगी, वो हमेशा ऐसे ही करता होगा. हम अपनी कॉजेज लगाने लगते हैं. शोन इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन. इसे क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूशन. जब हम खुद असाइन कर दें कॉजेज किसी सिचुएशन को. Okay, so that is called attribution. Got it? Right. Very often impression formation and attribution are influenced by attitude. बहुत बार जब हम किसी के बारे में ऐसे कुछ फॉर्मेशंस करते हैं, माइंड में इंप्रेशन बनाते हैं, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? एक्चुअली उसके एटीट्यूड से, उस पर्सन के. अगर तो आप उसे पहले से जानते हैं तो काफी हद तक आप उसके बारे में पहले से पता होता है, तो हम बोलते हैं हाँ लास्ट टाइम भी ना इसने ऐसे किया था, अब भी देखना इस सिचुएशन में दिस मैन इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. ये क्या हुआ? मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो उसके साथ रहे, उनका एटीट्यूड जो हमने अपने मन में उनके लिए जो एटीट्यूड फॉर्म किया, उसके बेसिस पर होते हैं. These 3 processes are examples of mental activities relating to gathering and interpretation of information about the social world. Okay? तो 3 कौन से? Attitudes, then impression formation and then attribution. तो ये 3 प्रोसेसेस की यहां बात हो गई है. ठीक है राजे? ओके, सो लेट मी जस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ दिस टू 150, नॉट 150, 125 इज फाइन. ठीक है? 3 प्रोसेसेस आई वाज अंडरलाइनिंग, सो दिस इज व्हाट इज 3 प्रोसेसेस. लेट्स रिड्यूस टू 100. ठीक है बच्चा? ओके, आगे चलते हैं. Related to gathering and interpretation of information about the social world, collectively called social cognition. तो किसको social cognition कहा? हमने 3 चीजें मिला दी गई बच्चों. क्या क्या मिलाया आपने? mental activities related to gathering, मतलब आपने जो इंफॉर्मेशन उसके थ्रू गैदर की, फिर आपने उसको इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया. ओके, और क्या किया? इंफॉर्मेशन के अबाउट द सोशल वर्ल्ड. तो ये सब आप क्या कहेंगे? सोशल कॉग्निशन हो गया. मोर ओवर सोशल कॉग्निशन इज एक्टिवेटेड बाय कॉग्निटिव यूनिट. इसमें एक कॉग्निटिव यूनिट की बात करें, दैट इज स्केमा. ओके, तो हमने ये जो सब किया, दिस इज कॉग्निटिव यूनिट कॉल्ड स्केमास. राइट? कॉग्निटिव प्रोसेसेस, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कॉग्निटिव प्रोसेस, व्हेन आई से इट हैपेंस हियर इन द ब्रेन, कैन नॉट बी डायरेक्टली सीन. यू कैन नॉट सी, जैसे मैं सपोजिंगली आई कैन नॉट सी what you are making attitude towards me, what are you making impression formation about me, I don't know, because it is happening in your brain. Similarly, मैं आपके बारे में क्या समझती हूँ और सोचती हूँ आपको नहीं पता चल सकता, क्योंकि it is happening where it is happening, it cannot be seen directly, so it is in the brain, so cannot be seen. Okay, so it cannot be seen. They have to be inferred on the basis of externally shown behavior. तो जो behavior आया उसके हिसाब से फॉर्म हो गया. There are other examples of social influence that are in the form of observable behavior. तो ये वो behavior है जो दिख सकता है. कुछ मेरे मन में जो बात चल रही है वो आप नहीं देख सकते, लेकिन हाँ मैंने किसी को गुस्सा कर दिया, मैंने किसी को स्लैप कर दिया, that you can see and you can say I am arrogant or I am very rude
राइट, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स के ऊपर। 2 such examples are, कौन कौन सी है देखते हैं। सोशल फैसिलिटेशन, जिसे स्लैश करके लिखा है इनहिबिशन, क्या है? द इम्प्रूवमेंट और द डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। सो क्या हुआ, किसी कभी कभी ना हम घर में, या जैसे सपोजिंगली मुझे किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है, आई एम अ वेरी गुड स्पीकर व्हेन आई एम अलोन, व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग आई स्पीक वेरी वेल, but what happens is whenever I address the gathering, my performance is generally there is a decline in that. So this is what do we call it? This social facilitation or maybe inhibition. Okay, so improvement or decline. अच्छा, decline भी हो सकती है, कुछ लोगों की performance gathering को देखकर बढ़ भी जाती है क्योंकि वो शायद conscious ज्यादा हो जाते हैं, prepare well करते हैं, तो improvement or decline. Pro-social and helping, presence of others and helping और pro social behavior. Helping क्या होता है? Socially आप proactively you go and extend your help to others. ये बहुत ही important topic है, लास्ट बोर्ड एग्जाम में टेस्ट भी हुआ था, लास्ट में जाके ये पढ़ेंगे प्रो सोशल बिहेवियर। इसका मतलब रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स हु आर इन नीड और डिस्ट्रेस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये वायरस में इनिशियली जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ तो पता चला, बहुत सारे लोगों को रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं, हाउ विल दे अर्न मनी एंड ईट फूड। तो बहुत सारे एनजीओज ने हाथ बढ़ाया, पर्सनली लोगों ने बढ़ाया, इंस्टीट्यूशंस आगे आए। वो क्या बिहेवियर था, अपने आप उन्हें लगा कि जो लोग डिस्गाइज्ड हैं उन्हें हेल्प किया जाए, डिस्गाइज नहीं, वल्नरेबल है उन्हें हेल्प किया जाए। तो ये खुद उठकर प्रोएक्टिवली जो आकर मदद की उसे बोलते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। हम सब में होना चाहिए। In order to understand completely how the social context influences the individual, it is necessary to study both social cognitive and social behavior. Social psychologists have shown that one must go beyond common sense and folk wisdom in order to explain how people observe and make senses of their own and others' diverse behavior. तो कहते हैं जी लोगों को ना अपना, हम जनरली बोलते हैं कॉमन सेंस कहती है ये बंदा ऐसे ही बिहेव करेगा। नो जी, प्लीज कम आउट ऑफ इट। दिस सोशल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कॉमन सेंस की इसमें कोई जगह नहीं है। फोक विजडम यानी वो जो बना रखा है अपने माइंडसेट, उसकी भी इसमें कोई जगह नहीं है। थ्रू सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अब इट हैज टू बी सिस्टमैटिक और एक ऑब्जेक्टिव के साथ होनी चाहिए, मतलब ये हर कोई नहीं कर सकता। एंड बाय अडॉप्टिंग सम मेथड्स, इट कैन नॉट बी डन बाय जस्ट लुकिंग एट द पर्सन, मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये ऐसा ही है, सो ऐसा नहीं है। इट इज पॉसिबल, let's move to the next page. It is possible to establish logical cause and effect. So there should be some logical reasoning there. आपने कहा मुझे लगता है is not enough. So social behavior का logical cause and effect relationship देखना important है. This chapter will give an account of the fundamental aspect of the topics mentioned above. हम जितने की बात करें एटीट्यूड और social cognition, इन सबको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे. So this was all about the introduction, the basis, and then nature and components I will cover in the next video. Bye bye. Take care.